اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت سوچو اتنا اپنی زندگی کے بارے میں نے دی ہے زندگی تو کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا تیرے بارے میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں یوٹیوب فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ شہباز نے آن ریکارڈ آ کر کہہ دیا کہ میں اپنی دونوں بہنوں کے لیے مر چکا ہوں۔ آخر شہباز نے ایسا کیوں کہا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے مر چکا ہوں؟ کیوں اس کی بہنوں نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے؟ آخر ان سب کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ فاطمہ آخر چاہتی کیا ہے؟ فاطمہ کا حال دیکھ کر اور حرکتیں دیکھ کر تو صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی چینل کو گرو کرنا چاہتی ہے اور ویوز لینا چاہتی ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں سے ریکویسٹ ہے اب یہاں آ کے یہ کمنٹ نہیں کر دینا کہ فاطمہ اپنے بھائی کو بچا رہی ہے، کیونکہ ڈیڈی بہت برا آدمی ہے، بہت گندا آدمی ہے، گنڈے لوگوں کے ساتھ اس کی جان پہچان ہے، جو اس کی چھمیاں ہیں ان کے بہت بڑے بڑے گنڈوں سے تعلقات ہے، کل کو اس کے بھائی کو کچھ کروا دیں گے، کچھ ہارم کروا دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے کوئی اندر گردی نہیں چل رہی ہے پاکستان کے اندر، پلیز ایسا مت کہیے گا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور خاص کر کے یہ یوٹیوبر ہے، ان کو کون نہیں جانتا، ان کے آپس میں دشمنی چل رہی ہے، ایسے ٹائم پر کوئی شہباز کو ہاتھ کیا ٹچ بھی نہیں کرے گا، اور یہ بات اچھی طرح سے فاطمہ بھی جانتی ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے ان ویڈیوز کی وجہ سے جو آپ کا بھائی آپ کے لیے بنا رہا ہے۔ کیسی زندگی اور کیسی بربادی، ذرا یہ بھی تو سمجھائیں۔ جب فاطمہ نے ہر چیز کو ایکسیپٹ ہی کر لینا تھا، ایکسیپٹ کر لیا ہے دل دماغ سے اور خود ہی پرمیشن دیا، جیسے کہ وہ چھمیا لوگ کہتے ہیں کہ سب کی مرضی سے ہوئی، ایون ان کا یہ کہنا ہے کہ فاطمہ نے حامی بھری ہے، فاطمہ نے اجازت دی ہے، تب جا کر اس نے وہ شادی کیا ہے، وہ نکاح کیا ہے۔ میں فاطمہ کے خلاف نہیں ہوں، میں ان عورتوں کو ویسے ہی نہیں پسند کرتی ہوں، فاطمہ پرمیشن دے یا نہ دے، مجھے وہ عورتیں صحیح نہیں لگتی ہے۔ ایک بات میں بتا رہی ہوں، اگر خود سے ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا، پرمیشن دیا، تو یہاں آ کر رونے دھونے کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے ویوز لینا، لوگوں کو پاگل بنانا، بیوقوف بنانا۔ وہ گیم جو ان کی فیملی ممبرز کھیلتے آ رہے ہیں، فاطمہ بھی وہی گیم کھیل رہی ہے۔ فاطمہ کا ویڈیو دیکھا، اسی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی، اذیت تھا، اور کہہ رہی تھی کوئی اپنا نہیں، سب اپنی اپنی اوقات دکھا رہے ہیں۔ چلو چھمیا لوگوں کے اوپر آپ بات کر رہی ہو، سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی اپنا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، وہ آپ کی سپورٹ میں ویڈیوز بنا رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ نے اپنے والد کو کال کیا، کال کر کر کے ان کو پریشان کیا کہ اس کو بولو ہماری زندگی برباد نہ کرے، اور یہ ویڈیو ہائیڈ کر دے یا ڈیلیٹ کر دے۔ آپ نے خود یہ سب کروایا، پھر اب کیوں آپ رو رہی ہو یہاں آ کر کہ کوئی اپنا نہیں ہے؟ جب آپ کا ساتھ آپ کا سگا بھائی دے رہا ہے، اس کو آپ خاموش کرا رہی ہو، لیکن یوٹیوب میں دوسرے لوگوں کو، ریئیکشن والوں کو، یہاں وہاں لائیووں میں جا کر آپ اپنا درد بیان کرتی ہو کہ وہ آپ کے سپورٹ میں بات کرے۔ پھر آپ کا بھائی اگر آپ کے سپورٹ میں بات کر رہا ہے، آپ نے اس کو کیوں چپ کروایا؟ چلیے تھوڑا فاطمہ کے بھائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ان کے بھائی نے آج کیا کہا۔ شہباز نے ویڈیو ہائیڈ یا ڈیلیٹ کرنے کا وجہ بتایا کہ ابو لوگوں کا کالز آ رہا تھا کہ آپ کی بہنیں کالز کر رہی ہے کہ اس کو بولو ویڈیو پرائیویٹ کرے، ہماری زندگی برباد نہ کرے۔ سوچنے والی یہ بات ہے کہ ڈیڈی نے جا کر شادی کر لیا، وہاں عیاشیاں کر رہا ہے بیٹھ کے اپنی نیو وائف کے ساتھ، اور یہاں فاطمہ بیٹھ کے رونا دھونا کر رہی ہے، یوٹیوب فیملی کو دکھا رہی ہے، ویوز لے رہی ہے اور اپنا سبسکرائبرز بڑھا رہی ہے۔ اور اگر بھائی ان کی سپورٹ میں کچھ بات کر لیتا ہے تو اپنے والد کو کال کر کر کے، تنگ کر کر کے یہ کہتی ہے کہ بھائی کو بولو ویڈیو ہائیڈ کرے یا ڈیلیٹ کرے، ہماری زندگی وہ برباد کر رہا ہے۔
फातिमा का ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। यूट्यूब में लोग बातें करें, रिएक्शन दें, हेटर्स, सपोर्टर्स इनको कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई उनके साइड लेकर बात ना करे, भाई उनकी सपोर्ट में वीडियो ना बनाए। बाकी दूसरे लोग लड़ो, मरो, अच्छा बुरा बोलो तो ठीक है। क्या ये ख़ानदानी पेशा है इनका कि बाकी यूट्यूबर्स को, रिएक्शन वालों को आपस में लड़वा दो और हम डॉलर छापते रहे अपना बैठ बैठ के आराम से? ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने भी पहले से देखा होगा। जब छोटी बाजी की कहानी आई थी तब भी ये हुआ, हेटर सपोर्टर्स बन गए। उसके बाद जब बड़ी बाजी आई तो उस वक्त तो सारी हदें पार हो गई थी। मतलब सब अपने खामोश, छोटी बाजी अपनी खामोश बैठ जाती है, बड़ी बाजी अपनी खामोश बैठ जाती है। बाकी रिएक्शन वाले जो सपोर्टर्स है, जो व्यूअर्स है, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गंदा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। हालांकि हमारा आपस में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो हम देखते हैं उनके बारे में वही चीज़ें बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ बोलती नहीं हूँ। जो दिखता है मुझे मैं वही बोलती हूँ। बाकी कुछ बहनों के पास राज होते हैं, दराज होते हैं। उन दराज़ों में काफ़ी बातें राज़ की वो छुपा के रखते हैं, और हो भी सकता है, कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है किसी का राज निकालना या किसी की बातें निकालना। लेकिन बात यह है कि वो लोग भी तो सारी बातें नहीं ला के रखते हैं यूट्यूब में, थोड़ी थोड़ी बातें लीक करते हैं। तो शहबाज का ये कहना है, जब इसकी वालिद ने इनको कॉल किया और कहा कि बार बार तुम्हारी बहनें कॉल्स कर रही है और कह रही है कि इसको बोलो वीडियो डिलीट करे या प्राइवेट करे, जो भी करे, हमारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर रहा है। तो शहबाज ने ये सोचकर वीडियो को हाइड, डिलीट, प्राइवेट, जो भी वटेवर उसने किया कर दिया, ये सोचकर कि सही बात है, मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी अगर बर्बाद हो रही है मेरी वीडियो बनाने से और मेरे सपोर्ट करने से, तो चलो मैं वीडियो हाइड, डिलीट, प्राइवेट कुछ भी कर देता हूँ, हटा देता हूँ यूट्यूब से। क्योंकि शहबाज का कहना था उसका बिल्कुल इरादा नहीं था वीडियो को प्राइवेट करने का या डिलीट करने का, लेकिन अब्बू अम्मी की इंसिस्ट करने की वजह से उसने वीडियो को हाइड डिलीट किया। फातिमा और सुमेरा ने भाई को ब्लॉक कर दिया। मतलब भाई के ऊपर नाराज है कि तुम हमारे सपोर्ट में बात क्यों कर रहे हो? अजीब बात नहीं है ये? एक भाई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम मुश्किल में हो और तुम उसी से नाराज हो रही हो, उसी को ब्लॉक कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? तो फिर यूट्यूब में आके क्यों ड्रामे कर रही हो? जब शौहर अच्छा है, शौहर से प्यार है, उसके बिना जी नहीं सकते हो, चाहे वो शादी करे, चाहे वो जिना करे, चाहे वो कुछ भी करे, उसी के साथ ही रहना है, तो फिर यूट्यूब में आके इतना ड्रामेबाजी क्यों? इन लोगों को व्यूज़ चाहिए, ये लोग अपने बच्चे दिखा दिखा कर भी व्यूज़ लेते हैं, गंदी गंदी बातें लेके, कंटेंट लेके, रोना धोना लेके, हस्बैंड ने शादी कर लिया, हस्बैंड ने जेट कर लिया, हस्बैंड ने ये कर लिया, हस्बैंड ने वो कर लिया, हस्बैंड ने तीसरी शादी कर ली। जब हर चीज़ आप लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हो तो फिर यहाँ आके इतनी ड्रामेबाजी क्यों करते हो? अच्छा, अब बात करते हैं दीदी के जो छोटा भाई है बाबरी। पहले मैं उसको समझती थी बहुत ही अच्छा है, इनोसेंट है, नेक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबरी भी सारे गेम में मिला हुआ है और वो बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का इंसान है। बाबरी ने बहुत ही चालाकी से और ट्रिक से चुप करवाया शाहबाज को। पता नहीं मुझे कि आप लोगों ने ये बात नोटिस किया है या नहीं किया है, बाबरी ने चालाकी से वार्निंग दिया है शाहबाज को। मतलब ये पूरा ख़ानदान जो है ना ब्लैकमेलर है और एक दूसरे का राज इन्होंने छुपा रखा है अपने दिलों में और दिमाग में कि वक्त आने पर हम इसके ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। जब शाहबाज ने डीडी के बारे में बातें कहा तो बाबरी ने अपने वीडियो में ये कहा शाहबाज से कि डीडी के पास भी तुम्हारे बहुत सारे राज हैं, तो तुम अगर ये सब बातें करोगे तो कल को डीडी भी तुम्हारे पीछे बात करेगा। उसके बाद बहुत ही चालाकी से बाबरी ने व्यूवर्स को ये समझाया कि मैं इसलिए शहबाज को रोक रहा हूँ कि डीडी के ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाए, क्योंकि इन दिनों में लास्ट कुछ टाइम से डीडी का और शहबाज का बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, गहरी दोस्ती, और एक दूसरे से अपना राज शेयर करते थे। बहुत सारे सवाल है जो दिल में आ रहा है। फातिमा के ख़िलाफ़ भी मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रहा है कि दोनों बहनें मिलकर भाई को क्यों चुप करवा रही है। भाई अगर साथ दे रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी को साथ देना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं भाई अगर साथ देगा तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब इसकी ज़िंदगी कब आबाद थी? फातिमा की ज़िंदगी कब आबाद है? हस्बैंड ने तीसरी शादी कर लिया, तुमसे दूर जाकर
अय्याशियाँ कर रहा है, उस बीवी को गिफ्टें दे रहा है, उसके साथ शॉर्ट्स बना रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या-क्या कर रहा है, और तुम यहाँ बैठ के अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हो। कौन-सी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हो? डीडी कहता है मैंने निकाह किया, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। आप अपने भाइयों को चुप करा रही हो, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि डीडी ने शादी कर ली, कोई बात नहीं है। वो भी कह रहा है मैं दोनों बीवी का ख्याल रखूंगा, और आप भी हर चीज़ में राज़ी हो, तो फिर यूट्यूब में बैठ के रोना धोना, आंसू बहाना, लोगों के सामने ये दर्द भरी आवाज़ सुनाना, आखिर क्यों? किस वजह से? सिर्फ डॉलर और पैसे के लिए दूसरों को क्यों परेशान करते हो आप लोग? जब आप लोग हर चीज़ अंदर से ठीक हो, ऑफ कैमरा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर यहाँ इतना तमाशा करके लोगों को मत करो परेशान। छमिया की फैमिली तो डेली आकर यही बातें करते हैं कि घर में सबकी मर्जी से शादी हुई है, इवन फातिमा की भी मर्जी शामिल थी, फातिमा ने परमिशन दिया। जब खुद ही परमिशन दे दिया, हर चीज़ दे दिया, फिर रोना धोना सिंपैथी कार्ड खेलना क्यों? चलिए सबको छोड़े, मैं अपने बारे में बताती हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता, मैं तो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं को हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि अल्लाह रसूल की हर चीज़ को मानूँ, हर बात को मानूँ, लेकिन ये दूसरी बीवी का मेरे से नहीं हो सकता है। जो चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ वो क्लियर है। अगर किसी ने शादी करनी है दूसरी, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे छोड़ो, उसके बाद दूसरी शादी करो। मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ये मेरी साफ बात है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इन औरतों का नाटक मुझे समझ नहीं आता है। खुद ही परमिशन दे देती है, खुद ही शादी करवा लेती है, खुद ही सूटकेस पैक करती है, जैसे छोटी बाजी ने कपड़े, लहंगा, चोली हर चीज़ पैक कर करके दे रही थी, ट्रेन स्टेशन छोड़ के आ रही थी, और आने के बाद आके यूट्यूब में यहाँ रोना धोना शुरू कर दिया, शादी कर ली, शादी कर, मतलब सब कुछ सेटिंग वगैरह ये लोग खुद अपने शौहर को करके देते हैं कि जाओ जाके शादी करो। उसके बाद फिर जब वो कर लेता है, फिर यूट्यूब में आके रोना शुरू कर देते हैं। इसका तो यही मतलब हो गया कि मियाँ बीवी राज़ी खुशी से डॉलर कमाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक शादी कर लो, एटलीस्ट मिलियन में तो हम खेलेंगे, वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में जाएगी। एक और बात फातिमा की ज़रा मुझे बहुत खटकी है, जब अली के बारे में फातिमा ने कहा कि आज स्कूल नहीं गया है, अली की तबीयत ख़राब है, क्योंकि कल स्कूल में जब वो गया था, किसी ने उससे कहा तुम्हारा बाप तीसरी या चौथी शादी कब करेगा, और ये सुनकर अली इतना अपसेट हो गया कि वो बच्चा बीमार ही हो गया। क्या फातिमा की ये बात आप लोगों को सच लगता है? आप लोगों को लगता है कि अली इतनी सी बात पर बीमार हो जाएगा? सोच सोच कर इतना एज का हो गया है वो, इतना समझदार हो गया है वो। जो बच्चा बचपन से माँ बाप की अलैदगी की वजह से, डिवोर्स की वजह से, तलाक की वजह से कभी माँ के पास जाता है, कभी बाप के पास रहता है, उसको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चा इतना नरम दिल का है कि बाप की शादी का सुनकर कि दोस्त ने ताना मार दिया, वो इतना बीमार हो गया कि स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, और ये बातें बैठ के ऑन कैमरा बता रही है फातिमा हम लोगों को, व्यूअर्स को। मुझे तो एक बात का पता है, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो, ओवर एक्टिंग, शो ऑफ जो है ना वो पकड़ा जाता है, वो नज़र आ जाता है कि कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है, कोई सच्चे दिल से बात कर रहा है, कोई दिखावा कर रहा है। ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये समझ आ जाता है और दिख जाता है। मुझे जो लगा मैंने अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग का कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे, जो जहाँ जिस मुश्किल में भी है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।